Loving Father, once again, we commit this gathering into your loving hands, O God. We thank you once again for this blessed opportunity, Lord. Thank you for our dear brother, Charles Bunner, Lord, whom you have prepared, Lord, to speak to us, to convey our burden, O God, your burden, O God. Yes, Lord, grant him words and expressions, and grant us hearing ears, O God, to understand, Lord, your burden, Lord, which you want to speak to us in our spirit, Lord. Yes, Lord, speak to us. We are needy. We are needy and hungry, Lord. Speak to us. Let your name be glorified, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Brother Charles, if you can come and share the word, brother. And Brother Abhishek will translate. Am I audible, brother? Yes, brother. Yes, you are audible. Yeah, Okay. Can you hear me clearly? yes, brother. Yes, we are able to hear you clearly. Okay. Yeah, thank you, and good morning to all of you. आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को सुप्रभात. It's my joy to be with you, brothers and sisters. और आप सभी के साथ आज यहाँ पर मौजूद होना मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है. This morning I wanted to share with you something about hope. और आज की सुबह मैं आपके साथ आशा के विषय में कुछ साझा करना चाहता हूँ. Or rather, the God of hope. या फिर कहें कि आशा का परमेश्वर, इसके विषय में कुछ साझा करना चाहता हूँ. Because our hope comes from God. क्योंकि हमारी जो आशा है वो हमारे परमेश्वर की ओर से आती है. And any hope that is not originated from God is not real hope. और कोई भी ऐसी आशा जो परमेश्वर की ओर से नहीं आती है वो असल में आशा नहीं है. Because the hope that we have, or the trust that we have on mankind, we sometimes get disappointed. क्योंकि जो आशा या फिर जो उम्मीद हमारी मनुष्य से होती है उससे हमें कई बार निराशा का सामना करना पड़ता है. Because the Bible says, if we hope in the Lord, or if we trust in the Lord, we shall not be disappointed at all. क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहती है कि अगर हमारा भरोसा और हमारी आशा जो है परमेश्वर पर है तो हम कभी निराश नहीं होंगे. And the Bible says our God is God of hope. और पवित्र शास्त्र कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो एक आशा का परमेश्वर है. We all human beings live by hope. सभी जो संपूर्ण मनुष्य जाति जो है वो आशा पर जीवित है. We hope for tomorrow. हम कल की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं. We hope for the next week or the next month or the year. हम और उसी प्रकार से हम अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल की भी आशा, एक उम्मीद बांध के रखते हैं. We live on faith, on hope. और हम आशा पर जीवित हैं. And hope is something that keeps us going. और ये आशा ही है जो हमें आगे आगे बढ़ते रहने के लिए, जीवित रहने के लिए प्रोत्साहित करती है. And it sustains us. और वो हमें संभालती भी है, हमारा पोषण भी करती है. Now, I would like you to turn with me to Romans chapter 15, verse 13. आइए इसी संदर्भ में देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 15वां अध्याय और उसका 13 वचन. रोमियो 15 उसका 13. It reads here that now, it's not tomorrow, now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है रोमियो 15 के 13 में, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है
तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। Many a times we come into situations where, in those whom we put our hope in or we trust, they can terribly disappoint us. हम कई बार ऐसी परिस्थितियों में पड़ते हैं जब कि हम ऐसे कुछ लोगों पर अपनी उम्मीद या अपनी आशा, अपना भरोसा रखते हैं और फिर हमें निराशा का सामना करना पड़ता है, Because everybody wants to seek their own. क्योंकि हर कोई जो है वो अपना सोचता है। But God is not a disappointment लेकिन परमेश्वर जो है उसमें कोई निराशा नहीं है, because He is a God of hope, it says here. क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो है वो एक आशा का परमेश्वर है। Just like there are many attributes to God, this is one of His attributes. जिस जिस प्रकार से परमेश्वर के और बहुत सारे आयाम हैं, आशा भी जो है वो परमेश्वर का एक आयाम है, या तो कहिए कि उसका एक गुण है। God is called God of love. हम कहते हैं कि परमेश्वर जो है वो प्रेम का परमेश्वर है, God is the one who is originator of our faith. और वो हमारे विश्वास का उद्गम है, He is our strength. वो हमारा बल है, He is our sustainer. और वो हमें संभालता है, He is our keeper. वो हमारी रक्षा करता है, He is our provider. वो हमें प्रदान करता है, He is our savior. वो हमारा उद्धार करता है। There are so many things that are attributed to God and His character. और ये सारे गुण जो है उसको परमेश्वर की प्रकृति में सम्मिलित हैं। But today we will look at the word hope or the God of hope. लेकिन आज हम आशा जो है या फिर आशा जो परमेश्वर से आती है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। And hope comes by believing. और आशा जो है वो विश्वास के द्वारा आती है। If you don't believe in somebody, whatever he says, you will not have hope. अगर आप किसी पर विश्वास नहीं करते कि वो क्या कहता है, तो आप में आशा नहीं रहेगी उस व्यक्ति को लेकर। And also, it depends upon the object of our hope. और वो किस किस वस्तु के बारे में आशा जो है वो वस्तु पर भी केंद्रित है, किसी चीज पर भी केंद्रित है। And we need to see in scripture that there is none but God alone in whom we can trust, who will not disappoint us. और पवित्र शास्त्र में ऐसा बार बार लिखा है कि परमेश्वर को छोड़ परमेश्वर से हमें कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। You can turn with me to the Psalms, book of Psalms, 118, Psalm 118. आइए देखते हैं भजन संहिता 118 And verse 8. भजन संहिता 118 उसका 8वां वचन। It says here, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। The same thing is repeated in verse 9 also. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. और कुछ ऐसा ही उसके आगे 9वें वचन में भी लिखा है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भी भरोसा रखने से उत्तम है। You know why this is said two times the same thing? One says, don't trust man, don't trust in princes. क्या आप जानते हैं कि ये बात को 2 बार क्यों दोहराया गया है? एक बार कि मनुष्य पर भरोसा रखना नहीं चाहिए, और दूसरा कि प्रधानों पर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। That our refuge or our trust or our hope should be only in the Lord. क्योंकि हमारा जो शरण है, जो हमारा भरोसा है, जो हमारा आशा है, वो सिर्फ यहोवा ही है। By the way,
This verse, Psalm 118 verse 8, is the middle verse of the Bible. क्या आप ये जानते हैं कि ये जो अभी हमने वचन पढ़ा अध्याय 118 का 8वां वचन, ये अगर पवित्र शास्त्र के सारे वचनों को लिया जाए तो ये उसके एकदम बीच का वचन है। 594 verses before and 594 verses after this verse is पवित्र right at शास्त्र, the center of the Bible. ये वचन बाइबल के बिल्कुल मध्य में है। 594 वचन इससे पहले हैं और 594 वचन इसके बाद हैं। And probably God has written this right in the middle of the Bible to tell all of us not to trust in man. और शायद ये मुमकिन है कि परमेश्वर ने इस वचन को पवित्र शास्त्र के मध्य में इसलिए रखा है ताकि वो हमको याद दिलाए कि मनुष्य पर हमें भरोसा नहीं रखना चाहिए And trust in him alone. और हमें हमेशा सिर्फ परमेश्वर पर ही भरोसा करना चाहिए। Not even in princes, it says. ऐसा भी लिखा है कि प्रधानों पर भी, राजाओं और राजकुमारों पर भी हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। Yes, Raja and Rajkumar. That is very important because we always look up to some big shot in the world to help us. क्योंकि हम हमेशा किसी बड़े आदमी, किसी बड़े महकमे या फिर बड़े ओहदे के आदमी पर हम अपना विश्वास करने की कोशिश करते हैं। Some minister or prime minister or president कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति, ऐसे लोगों पर विश्वास करना चाहते हैं, or even the king. या फिर राजा, उस पर विश्वास करना चाहते हैं। But the Lord says, don't trust them लेकिन परमेश्वर कहता है कि उन पर अपना भरोसा मत रखो, because there is somebody above all these people who is the King of Kings and the Lord of all the Lords. क्योंकि कोई ऐसा है जो इन सभी प्रधानमंत्रियों और राष्ट्रपतियों और सभी हाकिमों के ऊपर विराजमान है। And the Lord says again, he emphasizes the same thing in Jeremiah chapter 18, verse 14. Jeremiah chapter 18, verse 14. यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 का और 24 निकालेंगे। यिर्मयाह 18, No, I'm sorry. Jeremiah 17, verse 5. We'll come to that other verse later. यिर्मयाह 17 का 5, यिर्मयाह 17वां अध्याय उसका 5वां वचन। Jeremiah 17, verse 5. Thus says the Lord, cursed is the man who trusts in mankind and makes flesh his strength, and whose heart turns away from the Lord. तो यहाँ लिखा है, यहोवा यो कहता है, शापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। For he will be like a bush in the desert and will not see when prosperity comes. और आगे लिखा है, वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा, But will live in a stony wastes in the wilderness, a land of salt without inhabitant. वह निर्जल और निर्जन तथा लोनछाई भूमि पर बसेगा। That means if a person trusts in mankind rather than in God, he will be a lonely person, like a इसका bush in a desert. इसका अर्थ यह है कि जो पुरुष मनुष्य पर भरोसा रखेगा वो एक ऐसे पेड़ के समान होगा जो कि एक बियाबान में, एक निर्जल स्थान में है। Even when prosperity comes, also, he will not see it. और जब भलाई आसपास भी होगी तभी उस व्यक्ति को वो भलाई नहीं दिखेगी। He will live in stony waters, in wilderness, and in salty places without inhabitants. That means no fellowship. He's a और loner. वो एक ऐसा पेड़ होगा जो एक बियाबान में, बंजर भूमि में है और एक ऐसे व्यक्ति की तरह होगा जिसका कोई संगी साथी नहीं, कोई संगति नहीं उसकी। This is the condition of a man who trusts in man. ये एक ऐसे व्यक्ति की परिस्थिति है, उसकी ऐसी स्थिति है जो कि मनुष्य पर भरोसा रखता है। But it says in verse 7, blessed is the man who trusts in the Lord and whose trust is the Lord.
और 7वें वचन में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। How will his life be? उसका जीवन कैसा होगा ऐसे व्यक्ति का? It says he will be like a tree planted by the water, और आगे लिखा है, वो व्यक्ति ऐसा होगा जैसा एक वृक्ष जो नदी के तीर पर लगा हो या फिर किनारे लगा हो, that extends its roots by a stream, और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। but its leaves will be green, और लिखा है कि उसके पत्ते हरे रहेंगे, and it will not be anxious in a year of drought, और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता न होगी, nor cease to yield fruit. क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। See the blessedness of the man who has made the Lord his trust or hope. क्या आप देख सकते हैं कि ये पुरुष जिसने अपना भरोसा यहोवा पर लगाया, वो किस प्रकार से आशीषित है। You have seen, those of you people in North India, you have many rivers there and many plants or trees along the river bank. You can see them always green, always fruit bearing. हम जो उत्तर भारत में रहते हैं, यहाँ पर कई नदियां हैं, और हम देख सकते हैं कि हम देखते हैं कि वहाँ पे जो पेड़ जो नदी के किनारे होते हैं, वो साल भर हरे रहते हैं और उनमें फल लगते रहते हैं। Even when the river runs dry sometimes, as it does in South India, और कई बार दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलता है कि नदियां जो है वो सूख जाया करती हैं गर्मी के मौसम में। see in North India you have rivers which give you perpetual water like Ganges and Yamuna or something because they receive rain during rainy season and water from the melted ice in summer. उत्तर भारत की जो नदियां हैं, जैसे गंगा है या यमुना है, उसमें वर्षा के वक्त तो उनमें पानी आता ही है, लेकिन जब वर्षा नहीं होती तब भी पहाड़ियों से, हिमालय से जो जो बर्फ पिघलती है, उसका पानी इन नदियों में आता है। But in South India, sometimes our rivers run dry. लेकिन दक्षिण भारत की जो नदियां हैं, उनमें ऐसा नहीं होता, वो कई कई दफा सूख जाया करती हैं। Sometimes, even when they are dry, some of the trees along the river bank, even the river has run dry in summer, they still stay green. लेकिन इन नदियां, ये जो नदियां हैं दक्षिण भारत में, जो जब वो सूख जाती हैं, फिर भी उनके किनारों पर जो पेड़ लगे रहते हैं, वो हरे ही रहते हैं। You know why? क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों है? Because its roots have gone deep down and hit the source of water. क्योंकि इन पेड़ों की जो जड़ें हैं, वो बहुत गहरे तक गई हैं, जहां पर कि पानी का स्तर मौजूद And रहता it says here that it will not fear when the heat comes or when drought comes. है। और जैसे यहाँ वचन में लिखा है कि जब धाम होगा या फिर सूखे वर्ष के में भी जो है, ऐसे पेड़ों को चिंता नहीं होगी। It says its leaves will always be green लिखा है कि उसके पत्ते जो है हमेशा हरे रहेंगे, and it will never stop yielding fruit. और ये भी लिखा है कि वो हमेशा फलता रहेगा। This is speaking about us, our spiritual life. ये जो है हमारे आत्मिक जीवनों के विषय में कहा गया है। If I trust in man, I will be a barren, fruitless, lonely person without any fellowship. अगर मैं मनुष्य पर भरोसा रखता हूँ, तो मैं एक निर्जल स्थान पर लगाया हुआ पेड़ होगा जो सूख चुका है और उसमें कुछ फल नहीं है और अकेला है। If my trust or hope is in the Lord, then I will be like a tree planted by the riverside. लेकिन इसके विपरीत, अगर मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, तो मैं उस पेड़ के समान हूँ जो कि एक नदी के किनारे लगाया गया है। I will not fear when heat comes, that means when summer heat is there. और मुझे गर्मी से कोई भय नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। This time I heard that in Delhi it was 53 degrees maximum. और इस बार मुझे सुनने को मिला कि दिल्ली का तापमान लगभग 53 डिग्री तक गया था। I don't know how you brothers and sisters managed with that kind of heat.
मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि आप लोगों ने ऐसी ऐसी गर्मी को कैसे सहा होगा। And in some of these desert places like Thar deserts and in the Middle East, Saudi and all that, I don't know what will be the temperature there and how life can be there with such hot condition in summer. और इस बात की भी कल्पना करना बहुत मुश्किल लगता है मुझे कि जैसे राजस्थान में जो रेगिस्तान है, और जैसे सऊदी अरब के जो रेगिस्तान है वहां पर भी बहुत तापमान रहता है, तो वहां पर भी जीवन किस प्रकार से मुमकिन है, मैं सोच नहीं सकता। But a tree planted by the riverside is not afraid of summer. लेकिन जो पेड़ नदी के किनारे लगाया हुआ है उसको गर्मी की कोई फिक्र नहीं है। Its leaves will be always green. That means it will always be fresh. उसकी जो पत्तियां हैं वो हमेशा हरे रहेंगे और वो हमेशा ताजा बना रहेगा। You know, there are certain tubers, means something that grows underground, and certain kind of plants and trees that dry up during summer, but when rain starts, they spring again back to life. क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनकी जड़ें, जिन्हें ट्यूबर भी कहा जाता है अंग्रेजी में, वो सूखे के मौसम में वो फलते नहीं हैं, या तो उनके उनके पौधे नहीं निकलते, लेकिन जैसी बारिश पड़ती है वो जमीन के ऊपर भी उनके पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। But here it is not like that. It is the one which is planted by the riverside is always green and fresh. It has something to give. It can give shade in the summer and fruit all through the year. लेकिन ये पेड़ वैसे नहीं है, ये पेड़ तो नदी के किनारे लगे हैं, साल भर हरे रहते हैं इनके पत्ते, और ये छाया भी देते हैं और फल भी देते हैं। Is a picture of how it's going to be in the New Jerusalem. और ये एक चित्रण है कि जो नया यरूशलेम होगा वो कैसा होगा। There also it says there will be trees along the riverside and they will be bearing fruit all the months of the year, it says. नए यरूशलेम के विषय में भी ऐसा कहा गया है कि वहां पर पेड़ होंगे, वो साल भर छाया देंगे और साल भर फल दिया करेंगे। This is God's will, my dear brothers and sisters, for us, और ये है परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए भाइयों और बहनों, that we be always rooted and grounded in Him, कि हमारी जड़ें जो हैं वो हमेशा परमेश्वर पर से चिपकी रहें, उस पर मतलब जमी रहें, and draw our sap and nourishment from Him. और हम जो है अपने आत्मिक मनुष्य के लिए जो पोषण की जरूरत है वो परमेश्वर से लेते रहें अपने जड़ों के द्वारा। When we do that, then we will be green like this, bearing fruit all the time, spiritually speaking. और जब हम ऐसा करने पाएंगे तो आत्मिक तौर से हम हमेशा ताजा और फलदायी रहेंगे। But if our roots are in man, our hope and trust is in man, then we will be like, dry land, no fruit, no fellowship, no joy, no peace. लेकिन जब हमारी जड़ें जो हैं वो मनुष्य पर केंद्रित हैं, उस पर जड़ लिए हुए हैं, तो फिर हमारा जीवन जो है सूखा, बेजान, बिना संगति का, बिना आशा का हो जाएगा। Now we can go to the next chapter. In verse 18, in chapter 18, in the same book, Jeremiah 18. आइए देखें अगला अध्याय यिर्मयाह की पुस्तक का, यिर्मयाह 18, and it's the same, is it the 18th verse, brother? Yeah, 18, no, Jeremiah 18, 14. यिर्मयाह 18 उसका 14 वचन। It says, does the snow of Lebanon forsake the rock of the open country, or is the cold flowing water from a foreign land ever snatched away? तो यहाँ लिखा है यिर्मयाह 18 के 14 में लिखा है, क्या लेबनान का हिम जो चट्टान पर से मैदान में बहता है बंद हो सकता है,
क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता है कभी सूख सकता है? See, this we can uh, apply to our nation. और इस बात को हम अपने देश भारत में भी जो है देख सकते हैं। You want, you can read it like this. Does the snow of the Himalayas instead of Lebanon can say, forsake the rock of the open country? Or तो is हम the cold flowing from it huh, ever be snatched away? तो इस वचन को हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं अपने भारत के संदर्भ में कि क्या हिमालय की जो हिमालय का जो हिम है, जो उसकी बर्फ है, जो चट्टान पर से मैदान में बहता है, क्या वो कभी बंद हो सकता है? और क्या वह ठंडा जल जो दूर से बहता आता है, क्या कभी सूख सकता है? It's not, it is unheard of ever since it was created that uh, some places in the north they have always received water all through the year and through the years or centuries because there has been sufficient water. Water is a picture of the Holy Spirit. और जब से हिमालय की रचना की गई है, तब से उत्तर भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कि कभी उन्होंने सूखा नहीं देखा, क्योंकि इन नदियों में हमेशा से पानी रहा है। और ये जो है ये पानी जो है ये पवित्र आत्मा को दर्शाता है। Because God has made it in such a way in some places in the world that they receive constant uh, water. क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी की रचना ऐसी की है कि कुछ भाग जो है पृथ्वी के ऐसे हैं जहाँ पर कि हमेशा पानी की प्रचुरता रहती है। Jesus said, he who comes to me, will never thirst or never hunger. यीशु मसीह ने भी ये कहा कि जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और कभी प्यासा नहीं रहेगा। And he who is thirsty, let him come to me and drink, he said. और जो कोई प्यासा है वो मेरे पास आए और इस कुएं में से पिए। Out of his innermost being shall flow rivers of living waters. और ऐसा भी कहा कि अ, उस व्यक्ति के अंदर से जो है जीवित जीवित जल की धाराएं फूट निकलेंगी। To be able to meet the needs of those around us who are in need. ताकि उससे उन लोगों को संतुष्टि मिले जो हमारे आसपास हैं और वे भी तृप्त हों। But sometimes people can say no, like we लेकिन read in verse 12. लेकिन कई बार जो है लोग इस जल का इनकार कर सकते हैं, जैसे कि हम 12वें वचन में पढ़ते हैं। It says, but they will say it is hopeless. We are going to follow our own plans, and each of us will act according to the stubbornness of his evil heart. और 12वें वचन में लिखा है कि परंतु वे कहते हैं ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हठ पर बने रहेंगे। Verse 15 it says, for my people have forgotten me. और 15वें वचन में लिखा है परंतु मेरी प्रजा मुझे भूल गई है। They burn incense to worthless gods, and they have stumbled from their ways, from the ancient paths, to walk in bypaths, not on a highway. वे निकम्मी वस्तुओं के लिए धूप जलाते हैं, उन्होंने अपनी प्राचीन काल के मार्गों में ठोकर खाई है और पगडंडियों और बेहड़ मार्गों में भटक गए हैं। This is self-confidence rather than God confidence. और ये जो है आत्मविश्वास है, इसके बजाय कि परमेश्वर पर विश्वास हो। This is walking in muddy path rather than the highway. और ये पगडंडियों पर और बीहड़ मार्गों पर चलने के जैसा है, ना कि चौड़े रास्तों पर जैसे हाईवे कहा जाता है उस पर। No, those who reject the Lord and want to have their own way and want to live according to their wisdom, they will be walking on mud path like, or kacha road. और वे लोग जो परमेश्वर को नकार देते हैं, अपनी ही इच्छा और अपनी ही बुद्धि समझ के अनुसार चलना चाहते हैं, परमेश्वर की समझ पर नहीं, वे जो है कच्चे रास्तों पर चलते हैं। But according to कीचड़ this verse, those who trust in the Lord, they will be walking on the highway like.
लेकिन इस वचन के अनुसार जो लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं वो प्राचीन काल के मार्गों पर या फिर चौड़े सुंदर रास्तों पर चलते हैं। You just imagine there are two friends. One wants to reach to a destination by muddy road full of potholes and things like that, and another one goes to the same destination via highway. तो मान लीजिए कि दो दोस्त हैं और दोनों की मंजिल एक ही है, लेकिन एक जो है वो ये कहता है कि मैं तो कच्चे रास्तों पर जिन पे गड्ढे हैं और कीचड़ भरा है उसमें जाऊंगा, और दूसरा कहता है कि नहीं, मैं तो हाईवे लूंगा, जो सुंदर चौड़ा रास्ता है उससे जाऊंगा। And see how long it takes for one person and how short time it takes for the other person. तो फिर आप देख सकते हैं कि अंत में जो उन दोनों में से कौन अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचता है। The one who is on the highway will just zoom in no time. जो व्यक्ति हाईवे से जा रहा है वो बहुत ही तीव्रता से और बिना कोई समय बर्बाद किए जो है अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। The person on muddy road, he will be not only he will be straining himself, but he'll be spending more time and energy in reaching that place. और जो व्यक्ति कच्चे रास्ते से गड्ढे रास्ते से जा रहा है, गड्ढे भरे रास्ते से जा रहा है, वो ज्यादा कोशिश भी और अपनी शक्ति भी लगा रहा है और वो बहुत देर से भी पहुंचेगा। So the Lord says, why you want to go like that? तो परमेश्वर कहता है कि तू क्यों ऐसे रास्ते से जाना चाहता है? Why you want to follow your own way and trust in man or trust in idols made by hand? तो क्यों तू जो है मनुष्य पर विश्वास रखना चाहता है, या फिर क्यों ऐसे मूर्तियों पर विश्वास रखना चाहता है जो हाथों के द्वारा रची गई हैं? The Lord, the Creator who sustains us, who has given us life and breath, is the one who wants us to depend upon Him from birth to death. तो जो अनंत काल का जो परमेश्वर है, जो हमारा रचने वाला है, जिसने हमारे हमको जीवन की श्वास दी है, वो चाहता है कि हम उस पर निर्भर रहें अपने पूरे जीवन भर। Even in Psalm 1:3 it says, he who trusts in the Lord is like a tree planted by the riverside, always bearing fruit, like we read. और भजन संहिता में भी हमने देखा कि जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है वो उस पेड़ के समान है जो नदी के किनारे लगा है, साल भर फल देता है। So the Lord wants us to stop trusting in mankind. तो परमेश्वर चाहता है कि जो है हम मनुष्य जाति पर, मनुष्य पर भरोसा रखना छोड़ दें। Sometimes He allows us to be disappointed by trusting in mankind. और वो कई मर्तबा ऐसा होने देता है कि हम जो मनुष्य पर विश्वास रखते हैं, हमें अपने जीवन में निराशा का सामना करना पड़े। And the more we trust man, the more we get disappointed. और जितना ज्यादा हम मनुष्य पर विश्वास रखते हैं, उतना ज्यादा हमें निराशा झेलनी पड़ती है। But the Lord says, he who trusts in me shall never be disappointed. लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो कोई मुझ पर भरोसा रखता है वो कभी निराश ना होगा। And the Lord has always promised to be there with us. और परमेश्वर ने ये हमसे वचन दिया है, हमें प्रतिज्ञा दी है कि वो हमेशा हमारे साथ मौजूद रहेगा। And he has promised to be for us against the devil and sin. और वो शैतान और पाप के विरुद्ध जो है हमारी ओर है, हमारे संग है। And the Bible says that the Lord is the strength of my life. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर मेरे जीवन की सामर्थ्य है। Psalm 27 verse 1 it says, the Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? भजन संहिता 27 का पहला वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? And the Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? यहोवा मेरे जीवन का मजबूत गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? So when the Lord is my light and my salvation and my strength, I don't have to fear any man. तो जब परमेश्वर मेरी ज्योति है, मेरा उद्धार है, मेरे जीवन का मजबूत गढ़ है, तो मैं किस मनुष्य का भय खाऊं? It's a wonderful psalm. Maybe we will just turn there for a moment. Psalm 27 verse 1.
ये एक बहुत ही सुंदर भजन है। आइए हम उस पर ध्यान ध्यान करें। भजन संहिता अध्याय 27 उसका पहला भजन। It says, in verse 2, it says, when evildoers came upon me to devour my flesh, and my adversaries and my enemies, they stumbled and fell. दूसरे वचन में कहता है, जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। Though a host encamp against me, my heart will not fear. चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले, तो भी मैं न डरूंगा। Though war arise against me, in spite of this I shall be confident. चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। So, brothers and sisters, you don't have to be afraid of things that are going to come upon this world in the future. तो प्रिय भाइयों बहनों, इस पृथ्वी पर, इस संसार में आगे आने वाली चीजों से हमें भयभीत या चिंतामय होकर जीवन व्यतीत नहीं करना है। Because the word of God is clear that we are going to be entering into difficult days. क्योंकि वचन ये भी कहता है कि हम आने वाले दिन जो होंगे वो बहुत ही कठिन होने वाले हैं। Because we belong to Jesus क्योंकि who हम has endured all these things. क्योंकि हम जो है यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, जिसने खुद सताहट को सहा। And it is not going to be easy in the coming days because this world is in the power of the evil one. और आगे आने वाले दिन जो है वो कठिन इसलिए होंगे क्योंकि ये जो संसार है, इसका हाकिम जो है वो स्वयं शैतान है। And this world didn't treat Jesus well. और इस संसार ने जो है यीशु मसीह के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। And it will not treat us, his disciples, also well. और तो ठीक उसी प्रकार से हम जो यीशु मसीह के चेले हैं, उनके साथ भी जो है संसार सही व्यवहार नहीं कर सकता। Because this world is under the power of the evil one. क्योंकि इस संसार का हाकिम जो है वो शैतान है। And we don't belong to this world. और हम इस संसार के नहीं। Like Paul says in the book of Philippians, we are strangers and we are sojourners or pilgrims in this world. जैसे पौलुस जो है फिलिपियों की पत्री में कहता है कि हम इस पृथ्वी पर अनजान और मुसाफिरों के नाई हैं। Our citizenship is in heaven. और हमारी जो नागरिकता है वो स्वर्ग की है। And this world is not worthy of Jesus' disciples. और ये संसार जो है यीशु मसीह के चेलों के लायक नहीं है। And it has never treated the disciples or including the Lord Jesus well. And we can't expect to be treated better in this evil world. तो चूंकि यीशु मसीह को इस संसार ने सही से उसके साथ व्यवहार नहीं किया, तो हम उसके चेले होने के नाते हम भी ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया जाएगा। We read in 2 Timothy 3:1. दूसरा तिमुथियुस उसका तीसरा अध्याय और उसका पहला वचन। दूसरा It says तिमुथियुस here, पहला वचन। but realize this, that in the last days difficult times will come. दूसरा तिमुथियुस तीसरा अध्याय पहला वचन, यहाँ लिखा है, पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। You know, people speak about good times ahead. आप जानते हैं कि संसार में लोग जो है वो कहते हैं कि आने वाले दिन तो बहुत अच्छे दिन होंगे। Some politicians say, अच्छे दिन आ रहे हैं. और हम जानते हैं कि कई राजनेता भी इस बात को कहते हैं कि अच्छे दिन आने वाले हैं। But my Bible says, अच्छे दिन is not going to come. लेकिन हमारा पवित्र शास्त्र ये कहता है कि अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। Because Jesus said that. I believe what Jesus said. क्योंकि मैं यीशु मसीह की बात पर विश्वास करता हूँ। I don't believe in what our politicians say. इसलिए मैं जो हमारे राजनेता कहते हैं, मैं उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता।
Jesus said very clearly in John's Gospel 16:33. यीशु मसीह ने यूहन्ना के सुसमाचार के 16 के 33 में बहुत साफ-साफ कहा, On the last day on earth, before he went to the cross the next day, one of Jesus' last words is like this. He said, "These things I have spoken to you that this is I'm reading from John 16:33. यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 का 33 यहाँ पर यीशु मसीह He's, जो है अंतिम दिनों के विषय में कह रहा है। yeah, he is telling, "These things I have spoken to you that in me you may have peace." यहाँ कहता है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। In the world you have tribulation, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, but take courage, I have overcome the world. परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। So Jesus made it very clear. One of the last words that he said that I have spoken these words to you so that in me you may have peace, but in the world you will have tribulation. But take courage, I have overcome it. तो बहुत साफ तौर से यीशु मसीह जो है वो ये कह रहा है कि मैं तुमसे ये बातें इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुमको मुझ में शांति मिले, क्योंकि संसार में तो तुमको क्लेश मिलेगा, लेकिन हिम्मत रखो क्योंकि मैंने इस संसार को जीत लिया है। And in chapter 14, verse 1 also he says, "Let not your heart be troubled. Believe in God and believe also in me." और 14वें अध्याय के पहले वचन में, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका पहले वचन में भी ये कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। You know in what context this verse that we began with is written? क्या आप जानते हैं कि ये वचन जो अभी हमने पढ़ा ये किस संदर्भ में कहा गया है? That is Romans 15:13. मतलब जो हमने रोमियो के 15 में पढ़ा था। You know in what context it is written? आप जानते हैं कि ये वचन किस संदर्भ में कहा गया था? बताइए, इट इज रोमन 15:13. 15:13। तो रोमियो 15:13 जो है किस संदर्भ में कहा गया है? We started with this verse. It says, "Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit." और जैसे हमने पहले पढ़ा था, सो परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। You know, this verse is written in relation to the Gentiles. और ये जो है जो अविश्वासी जो लोग थे उनके संबंध में कहा गया है ये वचन। We are all Gentiles. हम सब अविश्वासी नहीं, हम सब अन्य जाति हैं, हम सब यहूदी नहीं हैं। And it says, "For the Gentiles to glorify God for his mercy." It is written, "Therefore I will give praise to thee among the Gentiles, and I'll sing to thy name." That's in verse 9. और Just 3-4 verses above that verse. और नवे वचन में अन्य जाति या फिर जो यहूदी नहीं है उनके विषय में कहा गया है, और अन्य जाति भी दया के कारण परमेश्वर की बड़ाई करे, जैसा लिखा है कि इसलिए मैं जाति जाति में तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। And verse 10, "Rejoice, O Gentiles, with his people." Verse 11, "Praise the Lord, all you Gentiles, and let all the people praise him. There shall come the root of Jesse, and he who arises to rule over the Gentiles. In whom shall the Gentiles hope?" और आगे के वचनों में 10, 11, 12 में लिखा है, फिर कहा है, हे जाति जाति के सब लोगों उसकी प्रजा के साथ आनंद करो, और फिर हे जाति जाति के सब लोगों प्रभु की स्तुति करो, और हे राज्य राज्य के सब लोगों उसे सराहो। और फिर यशायाह कहता है कि यीशय की एक जड़ प्रकट होगी और अन्य जातियों का हाकिम होने के लिए एक उठेगा, उस पर अन्य जातियां आशा रखेंगी। And we read in Hebrews 11, that great chapter of faith, or the hall of faith of different people who accomplished so much through faith in God. और फिर इब्रानियों 11
का जो अध्याय है, जो कि विश्वासी जो मनुष्य जो भाई या बहनें हुई इतिहास में, उनके विषय में जो ये अध्याय है। So they did so many mighty things by faith in God. और परमेश्वर पर विश्वास के द्वारा से उन्होंने बहुत ही भव्य और अद्भुत कार्य किए, They didn't give up their trust or hope in the Lord. और उन्होंने अपनी आशा और अपनी उम्मीद जो है वो परमेश्वर पर से नहीं हटने दी। And these things are written for our instruction. और ये सब बातें जो हैं ये हमारे अ, हम हमें आज्ञा देने के लिए या फिर हमें डिसिप्लिन करने के लिए लिखी गई हैं। So, brothers and sisters, what I am trying to tell you today is don't get disheartened when trials and temptations and tribulations and persecutions come. तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ भाई बहनों कि जब आपके ऊपर कठिन परिस्थितियां आती हैं, आप प्रलोभन में पड़ते हैं, संसार की जो लालसाएं हैं या फिर सताहट है, जब ऐसी चीजें आती हैं तो आप उससे निराश ना हो, घबराएं नहीं। Some Christian churches and some preachers, they say that, when you come to Jesus, all things will be all right and you will not have any problem. You'll be healthy, wealthy, and you'll be protected, you'll be safe, and all those false assurances they give you. कुछ कलीसियाएं ऐसी हैं, कुछ मंडलियां ऐसी हैं जहां पर कि ऐसा प्रचार किया जाता है कि भाइयों बहनों, आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप मसीह के पास आ चुके हैं, तो आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप बहुत समृद्ध रहेंगे, आप बहुत ही हट्टे कट्टे रहेंगे, खाते पीते रहेंगे, आपके ऊपर कोई सताहट नहीं आएगी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। But Jesus said differently. लेकिन यीशु मसीह ने इससे बहुत ही विपरीत बात कही है। In the world you will have tribulation, इस संसार में तुम्हें क्लेश होगा, but be of good courage. लेकिन हिम्मत बांधो, I have overcome the world. मैंने इस संसार को जीत लिया है। These things I have spoken to you so that you may have peace in me. और मैं तुमसे बात इसलिए कहता हूँ ताकि तुम्हें मुझ में शांति मिले। In the midst of all these things, God has promised peace and rest in our heart. संसार की जो सारी हड़बड़ी है, जो सारी बातें हैं, उसके बीच में जो है परमेश्वर में हमें शांति मिलती है। The psalmist says, Thou hast prepared a table for me in the presence of my enemies, he says. भजन संहिता का लिखने वाला कहता है कि मेरे दुश्मनों, शत्रुओं के मध्य में तूने मेरे लिए जो है एक मेज तैयार की है। So that is God's. What does that mean? That God has prepared a table for me in the midst of my enemies. तो इस बात का क्या अर्थ है कि परमेश्वर ने मेरे शत्रुओं के मध्य में मेरे लिए एक मेज तैयार की है? That they cannot quench my faith and trust and hope and love for God. इसका अर्थ यह है कि जो मेरे शत्रु हैं वो मेरे विश्वास को, मेरे प्रेम को, मेरे आशा को और मेरे जो मेरा प्रेम है परमेश्वर की और उसको डगमगा नहीं सकते। Nothing will separate you, my dear brothers and sisters, from the love of God which is in Christ Jesus. मेरे प्रिय भाई और बहनों, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमको हमारे परमेश्वर से जुदा कर सके, उसका जो प्रेम है उससे जुदा कर सके जो यीशु मसीह में है। We have enough resources and promises of God to live by. हमारे पास परमेश्वर की प्रचुर मात्रा में ऐसी आज्ञाएं हैं, ऐसी ऐसी प्रतिज्ञाएं हैं, ऐसे वचन हैं। You can just look at a few verses with me in Romans chapter 8. आइए ऐसे कुछ वचनों को हम देखेंगे रोमियो के 8वें अध्याय में, रोमियो 8, It says in verse 26, रोमियो 8:26, The Holy Spirit also helps us in our weakness because we do not know how to pray, but the Spirit Himself intercedes for us. इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। And in verse 31 it says, 31 में, रोमियो 8 के 31 में लिखा है, If God is for us, who can be against us?
यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? And in verse 34 it says that who is there to condemn us? Jesus Christ is the one who is interceding for us, it says. और 34 में रोमियो 8 के 34 में लिखा है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह वह है जो मर गया वरन मुर्दों से जी उठा और हमारे लिए परमेश्वर की दाहिनी ओर निवेदन करता है। In 8 verses, it says about the Holy Spirit interceding for us, God being for us, and Jesus interceding for us. तो यहाँ पर ऐसे 8 वचन है जहाँ पर कि लिखा है कि जो है यीशु मसीह हमारी तरफ से निवेदन करता है और पवित्र आत्मा जो है वो हमारी अगुवाई करता है। So when Father, Son, and Holy Spirit, the triune God, is for us, who can be against us? तो जब त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो फिर कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है? And dear brothers and sisters, take courage. तो भाई और बहनों, आप जो है हियाव बांधें। It says further here in verse 35, who shall separate us from the love of Christ? और 35वें वचन में रोमियो 8 के 35 में लिखा है कि कौन है जो हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? Shall tribulation क्या क्लेश or distress या संकट or persecution या उपद्रव or famine या अकाल or nakedness या नंगाई or peril or sword? या जोखिम या तलवार? None of these things will separate us from the love of God. इनमें से कोई भी चीज जो है हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती है। Verse 37 it says, in all these things we overwhelmingly conquered through him who loved us. और 37वें वचन में लिखा है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। Or in the King James Version it says, we are more than conquerors in all these things. और जो किंग जेम्स जो अंग्रेजी का एक ट्रांसलेशन है उसमें लिखा है कि हम जो युद्ध जीत कर आने वाले हैं उनसे भी कहीं ज्यादा बढ़कर हैं। For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus. Verses 38 and 39. और 38 और 39 वचन में लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। Remember that the Lord is with you and for you against the devil and sin and the world. याद रखिए कि परमेश्वर जो है आपके संग है शैतान के विरुद्ध और इस संसार के विरुद्ध। Don't give up, don't get discouraged. अपनी आशा मत छोड़िए, निराश मत होइए। Don't get disappointed, don't get depressed. और Don't give up hope. आशा को मत छोड़िए, निराश मत होइए, उम्मीद को मत छोड़िए। And there is a verse in 1 Corinthians 10:13. I want you to remember this verse, all of you brothers and sisters. और एक वचन है पहला कुरिन्थियों 10 का 13। मैं चाहता हूं भाई और बहनों कि आप इस वचन को कंठस्थ कर लें, याद कर लें। पहला कुरिन्थियों 10 का 13। It says here that no temptation is irresistible in one translation. यहाँ लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। That means all temptation that comes your way, you can conquer it. इसका अर्थ यह है कि जो भी परीक्षा या जो भी कुछ प्रलोभन लालसाएं हमारे समक्ष आती हैं, हम उन पर जयवंत हो सकते हैं। You read that, brother, verse 13. 1 Corinthians 10:13. तो आइए इस वचन को पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय 13वां वचन। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। यहाँ तक। Yeah. So it's very clear that no temptation has overtaken you such as is common to man.
तो यहाँ लिखा है कि कोई भी ऐसी परीक्षा तुम्हारे ऊपर नहीं आई है जो कि मनुष्य जाति पर वैसे नहीं आती है या फिर उसके सहने से बाहर हो। So we should never say that, oh, something strange is happening to me. Because Peter says, your brothers in different places also are going through the same thing. तो हमें कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे ये मुझ पे किस प्रकार की परेशानी आन पड़ी, क्योंकि पवित्र शास्त्र में पतरस कहता है कि तुम्हारे भाई जो हैं, जो अलग-अलग स्थानों में रहते हैं, वे भी ऐसी ही परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। We should never say it is too much for me, because God will not allow us to be tempted beyond our ability, it says. और हमें कभी नहीं कहना चाहिए कि ये मेरे सहन शक्ति से बाहर है, मेरे सहने से बाहर है, क्योंकि वचन यहाँ कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर कुछ ऐसा नहीं हुआ है जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। We have heard many times from Brother Zach that a good teacher will not give a first standard child 10th standard question paper. और हमने भाई जैक के द्वारा भी कई बार ये सुना है कि कोई भी जो समझदार शिक्षक है वो किसी पहली कक्षा के बालक को किसी 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र नहीं देगा। So God knows how much we can take it. और परमेश्वर जानता है कि हम कितना सह सकते हैं। That's why He will not allow us to be tempted beyond what we are able, but with the temptation, He will make a way of escape. तो वो हमारे सामने कभी भी ऐसा प्रलोभन, ऐसी लालसा नहीं लाएगा जो हम सहन नहीं कर सकते, बल्कि उस प्रलोभन, उस लालसा से निकलने का भी जो है, निकासी का भी रास्ता निकालेगा। But it can happen sometimes because of verse 14. लेकिन कभी-कभी ऐसा हो सकता है और उसकी वजह है जो है That वो we may face sometimes temptations which we may not be able to bear it, because it says flee from idolatry. और कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ प्रलोभन ऐसे हों जिनका हम सामना नहीं कर पा रहे हैं या उनसे हम बार-बार हार रहे हैं, और ये क्यों हो रहा है? उसका वजह जो है 14वें वचन में दिया गया है, क्योंकि ताकि मूर्ति पूजा से बचे रहो। That means if my roots are not in the Lord Jesus Christ, but rather in man or in some material things or in money or even in some idols, then this verse will not come true to me. तो अगर मेरी जड़ें जो हैं, मेरी आत्मिक जड़ें जो हैं परमेश्वर को छोड़कर मनुष्य पर हैं या फिर किसी प्रकार की सांसारिक वस्तु पर हैं, या फिर किसी जिसको मैंने अपने जीवन की मूर्ति बना लिया है उस पर है, तो फिर ये जो 13वां वचन है ये मेरे जीवन पर लागू नहीं होगा। You know, something similar John the Apostle also said just before he concluded uh, his epistle in 1 John 5:21. और देखेंगे कुछ ऐसी ही बात जो है पहला यूहन्ना के 5वें अध्याय के 21वें वचन में लिखा है। You read it, brother. यहाँ पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसका 21 में लिखा है, हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। What is an idol? मूरत या मूर्ति क्या है? Not necessarily a image made out of metal or wood or clay. तो जरूरी नहीं कि कोई मूरत जो है वो कोई मिट्टी की या किसी धातु की या लकड़ी की कोई प्रतिमा हो, But an idol can be something that takes the place of God. मूर्ति वो है जो परमेश्वर की जगह ले लेती है। That can be our idol. वो हमारे जीवन में एक मूर्ति है, एक मूरत We है। may not keep a picture or a statue at home, but we may have something in our heart that takes the place of God in our life. तो जरूरी नहीं है कि हमारे कमरे में कोई चित्र हो, कोई फोटो हो या फिर कोई प्रतिमा हो, लेकिन कोई ऐसी चीज जो हमारे हृदय में जो है परमेश्वर की जगह ले ले। Jesus said that he who loves his father, mother, brother, sister,
children, husband, wife, his own life, he is not worthy of me. यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने माता-पिता से प्रेम No, करता है, अपने बच्चों से, अपने भाई-बहनों से प्रेम करता है, खुद से भी प्रेम करता है, वो मेरे सेवा के लायक नहीं। we need to love the Lord our God with all our heart, mind, soul, and strength. हमें परमेश्वर को प्रेम करना है अपने पूरे मन से, शक्ति से, सामर्थ्य से। Above all these relatives, friends, and material things, and blessings, and property, if my love for God is supreme, then I shall be like this tree planted by the riverside. अगर मेरे हृदय में अपने सगे संबंधियों से, माता-पिता से, खुद से या फिर मेरे सांसारिक चीज़ों से ज़्यादा प्रेम जो है परमेश्वर से होगा या है, तो मैं उस पेड़ के समान हूँ जो नदी के किनारे रोपा गया है। The Lord has always promised to be with us if we abide in Him. और परमेश्वर हमारे साथ उसने ऐसा वचन दिया है कि वो हमारे साथ हमेशा रहेगा अगर हम उसमें रहना चाहेंगे तो। You know, almost the last word in Matthew's Gospel, he said, Lo, I am with you always, he said. और मत्ती रचित सुसमाचार के भी आखिरी वचन में यीशु मसीह ने अपने चेलों से ही कहा कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। Provided we abide in Him always. लेकिन इसके लिए ये भी होना चाहिए कि हम भी उसके साथ रहें, उसकी आज्ञा मानें। Be rooted like a tree and grounded like a building. हम एक पेड़ के समान जड़ पकड़े रहें और एक मजबूत इमारत की तरह जो है हमारी नींव जो हो वो मजबूत हो। And God has promised to be with us. और परमेश्वर ने ये वचन दिया है कि वो हमारे संग रहेगा। And He has good thoughts and intentions towards us. और उसके सारे जो कल्पनाएं हैं और उसके सारे जो विचार हैं वो हमारे भले के लिए हैं। So I want to conclude with this last one verse from Jeremiah 29, verse 11. तो मैं इस आखिरी वचन के साथ अपने अपनी बातों को रखना चाहूंगा। यिर्मयाह 29 ब्रदर 29 राइट 29:11, Jeremiah. यिर्मयाह 29 उसका 11। It says, I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. और यहाँ लिखा है यिर्मयाह 29 के 11 में, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। God says very clearly here, the thoughts that I have towards you, you put your name there. The thoughts that I'm thinking about you, put your name there. God is saying thoughts of welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. और यहाँ जैसे लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ, तो यहाँ पर आप अपना नाम रखिए। Then you will call upon me and come and pray to me, and I will listen to you. और आगे लिखा है, तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। And you will seek me and find me when you search for me with all your heart. आगे लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। And I will be found by you, declares the Lord, and I will restore your fortunes. मैं तुम्हें मिलूंगा, आगे लिखा है, मैं तुम्हें मिलूंगा, यहोवा की यह वाणी है, और मैं सब कुछ जो है तुम्हारे पास वो तुम्हें लौटा दूंगा। Remember that, brothers and sisters, God is your Father. याद रखिए कि परमेश्वर जो है वो आपका पिता है। When the disciples asked Jesus, Lord, teach us how to pray, Jesus said, pray like this, Our Father. जब चेलों ने यीशु मसीह से पूछा कि हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा, तो उसने उनसे कहा कि तुम ऐसे प्रार्थना करो कि हे हमारे पिता। And in the same chapter in Matthew 6,
Jesus said, Your Father, your Father. So many times he said, Your Father who feeds the birds, your Father who clothes the lilies of the field, your Father knows that you need all these things: food, clothing, shelter. और मत्ती रचित सुसमाचार की जो छठा अध्याय है उसमें बार-बार जो है अपने चेलों को परमेश्वर के विषय में बताते हुए यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारा पिता, तेरा पिता जो गुप्त में देखता है, तेरा पिता जो स्वर्ग से तुम्हें देता है। God is not some distant object living in heaven, unconcerned of us. परमेश्वर कुछ ऐसी दूर-दराज की कुछ चीज़ नहीं है जो स्वर्ग में मौजूद है और हमसे उसका कोई मतलब हम उसे पा नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। The Bible says he knows every detail of what's happening to you. पवित्र शास्त्र कहती है कि वो हमारे विषय में सब कुछ जानता है, समझता है। He knows everything about you, my brother and sister. वो आपके विषय में सब कुछ जानता है मेरे भाई या मेरी बहन। Believe in him. उस पर विश्वास कीजिए। Trust him. उस पर भरोसा कीजिए। Hope in him. उस पर अपनी आशा रखिए। And those who hope in him will not be disappointed. और जो उस पर अपनी आशा रखेंगे वो कभी निराश न होंगे। He will always be there for you. और वो आपके लिए हमेशा सदा मौजूद रहेगा। Yeah, the Lord bless you, brothers and sisters. परमेश्वर आपको आशीषित करे भाई और बहनों। Amen. आमीन। धन्यवाद। Thank you, Brother Charles Bonner, for the message of hope that we all need in our lives.